Hi, friends. So let's start today's analysis. I think fantastic day for Indian markets. We cannot complain in respect to what is happening around the globe, what is happening in India markets. I think it's pretty decent performance. But let's just dig down what has happened, what is the future, how it is looking about, what it means for the global world, and what it means for India. Because it's a big event which has turned down today. So, first thing that we have always told you, at least on this video channel, that don't take your positions until this event is out. So today this event is out. And now let us see what lies ahead of us. What are the strong factors? What are the strong positives for us? What are the strong negatives for us? And accordingly take a call in terms of how to make the positions. So I think therefore yesterday also I told that if you get somewhere around 22,800, 23,000, that is a level to buy. We didn't get at around those levels, but we were pretty close. So those who have bought around those levels, they can still be in long position with a stop loss of 22,800. But let's talk about what has happened into the global world. So, as expected, Mr. Trump has given the reciprocal tariffs in order to make now what he calls is that make America wealthy again. So he has changed the term now, and he has coined the term as now make America wealthy again. So yesterday was the American Liberation Day, as he calls, and probably in the Rose Garden he has launched the tariffs, reciprocal tariffs yesterday. So he has almost included 60 countries where reciprocal tariffs have come, but wherever there is a trade imbalance, he has told that around 10% flat tariff would be imposed wherever you have a trade imbalance. What it means for India? So India has been taxed, or let's say tariffed around 26, 27%, which is the tariff which has come on India. China now has become 54%. Europe is around 20%, and so on and so forth. Canada and Mexico has not been taken into the reciprocal tariff because they already have those 25% tariffs. Steel, aluminium, copper, and gold. All these four things have been kept out of the tariff domain, and the pharma also has been kept out of the tariff domain. Autos, already tariff has been announced by 25%. That is still ongoing. So now we have auto on 25% tariffs, and rest of the tariffs you already know how it is going along. So this big day has happened yesterday, and what is the result? Result is multi-folds. And let us discuss all parameters. So first of all, how the US markets have traded. US market traded yesterday in green, but remember the tariff announcement has come after the closing hours, and the Dow futures were down around 1100 points. Nasdaq was down around 700 points. That is the kind of downfall we're expecting in these two major benchmarks of US, which means at least the US market has not taken this anyway positive. It has taken it in a very, very, very negative way. What are the other parameters which have trickled because of this? One is dollar index. Now it has come at 6 months lows. So now it's trading around 102.5. Remember, we told that 102 is a level where we'll actually see dollar index coming down to. Now we're at those levels. We'll see what is the future dollar index lies from here on. But as of now, 102 is the level from where 102.5 is the level where the dollar index is trading now, giving very good comfort to the FIs and the foreign investors who want to invest in India. Bond yields, they're now trading at around 4%. So drastic drop in the bond yields, which means money has actually chased the safe haven, which is the bond yields, US bond yields, and that is why the US bond yields have come down, and they're trading around 4%, which is again around 3 to 4 months lows, and again a good positive for India and other emerging markets. How the other markets have traded because of the news. So China was pretty flat, but let's say it opened around 1% down, but as it was closing around, it's just 0.2% down. Shanghai, the Hang Seng index was also around 0.5 to 0.6% down. Nikkei was 3% down. European markets, we've seen a big cut. Kospi was down around 1 to 1.2%. And European markets were also trading lower by around 1.5% or so on average. So, European markets have taken a big hit. US markets have taken a big hit. Japan has taken a big hit. China and India have relatively outperformed. India has traded around 0.6% down, and let's say Shanghai is pretty much flat. So apart from these two markets, बाकी सारे markets को आप तगड़ा punishment मिला है. Let's see in the evening how the US session pans out, whether we'll see that kind of a downfall or we'll see a recovery या उससे ज़्यादा pain होता है. We have to wait and watch. But all the parameters
which are good for emerging markets, वो सब हमारे कंफर्ट में तो आ गए एटलीस्ट. क्रूड was also down by around 3%. So now we come around $70-71 once again. वो भी हमारे लिए कंफर्ट लेके आता है. And I think we are expecting today, I think the OPEC meeting, I think tomorrow, we're expecting increase of output from the OPEC countries, which means crude यहाँ से और नीचे आ सकता है, which is again a good positive for India. So taking these into perspective, it all happened good. And there was no surprise because I think market has given you a very balanced verdict. See, many people are surprised by the market action of India, but let's take into perspective what has the Indian markets done. Nifty Auto was down by 1%, 1.25%. Nifty Auto में पहले से ही correction built in था because ऑटो के टैरिफ्स पहले अनाउंस हो गए थे और वैसे भी ऑटोज के ऊपर हमेशा से मिस्टर ट्रम्प काफी वोकल रहे हैं एंड दैट इज द रीजन व्हाई उसके अंदर प्राइसेस पहले से था. सो अराउंड 1 to 1.4% कट स्टिल डिसेंट कट आई वुड से. फार्मा क्योंकि एग्जाम्प्ट हुआ तो 4% का अराउंड 2.65 2.7% गैप अप हुआ, ऊपर गया 4%, बाद में रिट्रेस हुआ बट इट क्लोज अराउंड 2% हायर. रिट्रेस क्यों हुआ? बिकॉज सम पीपल बिलीव दैट फार्मा को टाइम बिंग के लिए एग्जाम्प्ट किया गया है. Ultimately they are seeing some tariffs on pharma as well. That is why we saw some profit booking from the upper levels and pharma, Nifty Pharma could not hold to those higher levels. और around 2% के ऊपर बंद हुआ. So again, a good market, balanced, matured verdict on Nifty Pharma also. Nifty IT, it was down by 4%. Again, I would say a very matured verdict. क्यों? This is the index. These are the companies which are directly influenced by US. जिनके सारे बिजनेस अराउंड 80 to 85% बिजनेस इनका या तो यूएस से आता है या यूरोप से आता है, अराउंड 90% ऑफ द बिजनेस. सो वहां पे एक मेजर इंपैक्ट है. वहां की फ्यूचर्स डाउन है, वहां के मार्केट्स डाउन है तो नेगेटिव इंपैक्ट आना ही था. और सबसे ज्यादा नेस्डेक डाउन था अराउंड 3.7%. सो यू एक्सपेक्टेड अ बिग डाउनफॉल इन द आईटी इंडस्ट्री, सो इट केम अराउंड 4% डाउन. अगेन अ मैच्योर्ड वर्डिक्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री. नाउ व्हाट वाज अप? सो निफ्टी एफएमसीजी वाज फ्लैट. भाई एफएमसीजी को क्या फर्क पड़ना है टैरिफ से? देयर इज नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एज सच, तो वो फ्लैट था. अगेन अ गुड वर्डिक्ट. फाइनेंशियल्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स जो जिसने आज पूरे मार्केट को रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया बिकॉज नो लिंक विद यूएस टैरिफ्स. अगेन इट्स अ वेरी डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी. इवन रियल एस्टेट इज अ डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी. इवन सीमेंट वाज अ डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी. ये और पावर सेक्टर वाज आल्सो इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स. ये चारों सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया. सो अगेन आई वुड से अ मैच्योर्ड एंड अ वेरी बैलेंस्ड वर्डिक्ट. जब इस तरह का वर्डिक्ट आता है ना मार्केट के अंदर, तो आप ये मान लो कि एक मेच्योरिटी चल रही है मार्केट के अंदर एंड पीपल आर एक्चुअली डाइजेस्टिंग द न्यूज. दे आर ट्राइंग टू सी विच कंपनीज आर अफेक्टेड, विच सेक्टर्स आर अफेक्टेड एंड दोज आर पनिश्ड. दोज हु कैन स्टिल आउट परफॉर्म और जिनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, देयर इज नो इश्यू एट ऑल, those companies, those sectors will outperform. Exact market आज वही आपको वर्डिक्ट दिया. That is the beauty of the today's markets. कि मार्केट ने एक वन वे सेल ऑफ नहीं दिया आपको जो एक्सपेक्टेड था, जो बाकी मार्केट्स में हो रहा था. एक बहुत ही मेच्योर वर्डिक्ट दिया. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई सेलर हावी नहीं है. ही विल सेल व्हाट इज बैड बट इज रेडी टू बाय व्हाट इज गुड, विच मीन्स स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे, वीक सेक्टर्स सबड्यूड रहेंगे. अब स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स आपके सामने निकल के आ गए हैं which are domestic driven sectors. So some sectors like cement, sector like power, banking and financials, insurance, these are the sectors which will probably FMCG was also pretty flat, but we'll talk about FMCG also because the Dabur ka update aaya na, it was heartbreaking. I think just he has given a revenue increase or let's say a update which is revenue increase expected of only mid-teen, which is around 4 to 5%. दैट इज अगेन अ बैड न्यूज. सो एफएमसीजी का पेन खत्म नहीं हो रहा है, उनकी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है. यू रिमेंबर डे फॉर यस्टरडे गोल्डमैन सैक्स ने या किसी ब्रोकर ने ब्रोकरेज फर्म ने नेस्ले का टारगेट प्राइस कम किया था एंड वी सॉ अराउंड 3% डाउनफॉल इन द नेस्लेज स्टॉक एज वेल. एफएमसीजी में ग्रोथ नहीं आ रही है. निफ्टी आईटी पिटा हुआ है. metals में आज नेगेटिव in spite of dollar index getting down so drastically, निफ्टी मेटल was negative because अगर चाइना में ग्रोथ कम होगी, यूएस में ग्रोथ कम होगी तो मेटल्स कैसे इंक्रीज होंगे? मेटल्स को हु कंज्यूम्स मेटल्स द मोस्ट? चाइना एंड यूएस. अगर वो दोनों की ग्रोथ स्लो होगी जो एक्सपेक्टेड है तो व्हाई विल मेटल राइज? तो अगर हम अपने सेक्टर की बात करें, एफएमसीजी में आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है. निफ्टी आईटी विल रिमेन सबड्यूड जब तक यूएस में ये प्रॉब्लम चलती रहेगी. निफ्टी फार्मा कैन नॉट परफॉर्म, उसका इंडेक्स में वेटेज बहुत कम है और दूसरा उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है बिकॉज क्लैरिटी नहीं है. नाउ
so all these indexes, FMCG will remain pretty flat क्योंकि वहाँ पे growth नहीं है. So FMCG cannot perform higher. Nifty Auto will remain subdued. उसको effect आएगा इन tariffs के ऊपर से. तो only outperforming sector within Nifty is looking like as Nifty Bank. Even Reliance is not performing. So Nifty Bank Nifty को कितना खींच सकता है या Nifty Bank खुद अपने आप कितना खींच सकता है, that is to be seen. So whenever you are taking any positions, take that in mind कि FMCG का support आपको नहीं है, IT का सपोर्ट आपको नहीं है, रिलायंस का सपोर्ट आपको नहीं है, ऑटोज आर नॉट सपोर्टिंग यू, फार्मा का वेटेज बहुत कम है, एंड ऑल कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स देन ओनली यू टेक योर कॉल इन टर्म्स ऑफ हाउ टू गो इट फ्रॉम हियर. बट मार्केट ने एक रेजिलियंस दिखाया है आज, which means that probably we are not expecting a very big downfall from here on. तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट ऐसे सिंक करेगा, बट क्या मार्केट ऐसे बहुत ऊपर जाएगा? चांसेस लग रहे हैं आज का मार्केट एक्शन देख के, बट वी वांट वन और टू सेक्टर्स टू लीड ड्रास्टिकली फ्रॉम हियर. तो या तो निफ्टी बैंक बहुत ज्यादा लीड करे, और या फिर आपको कंट्रीब्यूशन किसी और सेक्टर से भी मिले, रिलायंस से मिले या निफ्टी एफएमसीजी से मिले. हो सकता है डाबर का एक अपडेट सिर्फ डाबर स्पेसिफिक हो, वी डोंट नो. बट निफ्टी बैंक के जो अपडेट्स आ रहे हैं, सो वी ऑलरेडी सीन द अपडेट्स मोस्टली फ्रॉम द स्मॉलर बैंक्स. जो मैंने एक मोटा मोटा एक अनुमान लगाया इन टर्म्स ऑफ व्हाट द ग्रोथ हैज बीन. So I'm seeing deposit growth of around 10 to 12%. I'm seeing advances growth of around 12 to 13%. So जो हमारा एक प्रॉब्लम था क्रेडिट ग्रोथ का, जो 11% पे आ गया था, उसमें आपको एक ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं दिख रहा है इस क्वार्टर में एटलीस्ट. तो क्या निफ्टी बैंक एक सेफ हेवन है? यस, एक सेफ हेवन है, बट क्या वो उतना अट्रैक्टिव रिजल्ट दे रहा है? अभी तक तो नहीं दे रहा है. अपडेट वैसे नहीं दिख रहा है. आई डोंट नो, लेट्स सी हाउ द बिगर बैंक्स पैन आउट टू बी. बट आज भी आप देखेंगे तो बाइंग स्मॉलर बैंक्स के अंदर थी. ऐसा लग रहा था कि शायद निफ्टी बैंक के थ्रू निफ्टी को मैनेज किया गया, बिकॉज एक्सपायरी थी आज. कल एफआई बहुत सारा बाय करके गए थे, इसीलिए आज शायद निफ्टी को थोड़ा मैनेज किया गया. बिकॉज निफ्टी बैंक के अंदर आपके तीन जो बड़े बैंक से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, छोटे बैंक कंट्रीब्यूट कर रहे थे, which I thought probably, एंड उसको कोई अपडेट भी नहीं, ज़्यादा अपडेट भी नहीं थे. सो जिस तरह के अपडेट्स आए हैं बैंक से उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट टू बी. पीएनबी का भी देखेंगे, डिपॉजिट ग्रोथ 10% के आसपास है, एडवांसेस ग्रोथ अराउंड 12% है. तो दैट इज अ ब्रॉड रेंज, एक्सेप्ट फॉर इट लेट्स से सम बैंक which have given some results, or let's say updates higher on some of the front. For example, Central Bank of India has given a deposit growth of 24%, which is huge. But वो छोटा बैंक है and it's only one bank specific. ब्रॉडली जो मैंने बताया कि डिपॉजिट ग्रोथ जो आपको मिली है वो 10% के आसपास मिली है, और जो एडवांसेस ग्रोथ है वो अराउंड 12% के आसपास है, 12-13% इन दैट रेंज. वी वर एक्सपेक्टिंग टू क्रॉस इट बियॉन्ड 15%. उस क्वार्टर में तो नहीं हुआ एटलीस्ट. लेट्स सी हाउ इट गोस. दूसरा, लेट्स नॉट फॉरगेट 26% ऑफ टैरिफ इज नॉट अ स्मॉल टैरिफ, इट्स अ बिग टैरिफ. द मार्केट्स वर एक्सपेक्टिंग 15-20% ऑफ द टैरिफ फ्लैट. It did not happen. We got 26%. It is on a higher side. मार्केट ने उसको प्राइस इन नहीं किया हुआ था, तो इसलिए थोड़ा डाउनफॉल एक्सपेक्टेड था, बट उतना डाउनफॉल नहीं हुआ जितना होना चाहिए, बिकॉज इसके लार्जर रिप्लिकेशंस हैं. सी व्हाट हैज हैपेंड टू यूएस नाउ. यूएस तो probably it is entering into a recession, there is no doubt at all, but what is lost is, or about to lose is its supremacy. जो यूएस का एक सुप्रीमसी था, जो वर्ल्ड को लीड करता था, तो जिन्होंने फ्री ट्रेड स्टार्ट किया, जिन लोगों ने ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करी, जिन लोगों ने ये एडवोकेट किया कि लेट अस हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, लेट अस हैव लेट्स सर्वाइव, लेट द कंपनी व्हिच इज मोस्ट कॉम्पिटिटिव सर्वाइव, एंड द कंपनी व्हिच इज नॉट कॉम्पिटिटिव लेट इट डाई डाउन, लेट्स नॉट हैव क्रॉस कंट्री बैरियर्स. तो जिन कंट्रीज ने, जिस कंट्री ने इसको सबसे ज्यादा एडवोकेट किया, सबसे ज्यादा फैलाया, सबसे ज्यादा प्रेशराइज किया. रिमेंबर, इंडिया वाज नेवर वांट टू गो फॉर लिबरलाइजेशन. इंडिया नेवर वांटेड ग्लोबलाइजेशन, बट हमको फोर्स किया गया इन 1991 1992, जब वी हैड अ लॉट ऑफ डेट एंड वी हैड टू kept our gold on reserves. India was forced to adopt liberalization. India was forced to adopt globalization. अब आप बोल रहे हैं कि we don't want to globalization, we want close barrier tariffs to come in place, and let's do only inside domestic manufacturing. So you're going back on your own words. एंड इन द प्रोसेस अमेरिका ने क्या किया? अपने सारे दोस्तों को खो दिया उसने. ही हैज नो फ्रेंड्स नाउ. नो कंट्री कैन सर्वाइव हाउएवर पावरफुल इट इज विदाउट एनी फ्रेंड्स. आपने यूरोपियन यूनियन से पंगा ले लिया, आपने कनाडा से पंगा ले लिया, आपने जापान से ले लिया. इंडिया एनीवेज दे वर नॉट बिग अलाइज, बट यू हैव यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा, मेक्सिको, यूएस आपस में एक बहुत अच्छे अलाइज थे जिनको आपने एक ब्रेकडाउन दिया है. सी, पीपल आर extremely angry from US. They are
they're falling cheated actually. They're feeling cheated actually because a lot of things have इसको और इस ऑर्डर को बनने में बहुत साल लगे थे. It took 20-30 years to form this kind of world order, जिसको आपने कुछ हफ्तों में disrupt कर दिया just because of one man of his own wish and without any homework. आप देखिए क्या फॉर्मूला लगाया उन लोगों ने. आपने दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड इम्बैलेंस को निकाला, उसका रेशियो निकाल के आपने वो टैरिफ निकाल दिया. दैट इज नॉट द वर्ड एंड यू आर ओनली काउंटिंग द गुड्स. व्हाट अबाउट सर्विसेज? भाई सर्विसेज तो ट्रेड हो रही है ना. सो व्हाई विल यू ओनली टेक द ट्रेड इम्बैलेंस बिटवीन ओनली गुड्स? सो इट वाज अ एड हॉक मैकेनिज्म व्हिच मींस दैट अब यहाँ से दो कंडीशन होंगी. या तो यूएस के अंदर बहुत डाउनफॉल आएगा या फिर जैसे वियतनाम वॉर में हुआ था. इफ यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड इंडिया एंड अमेरिकन वियतनाम वॉर. जब अमेरिका वॉर हार रहा था तो उन्होंने बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी अपनाई. उन्होंने बोला कि हम जीत गए. दे डिक्लेयर्ड देयर सेल्फ विक्ट्री एंड दे टोल्ड दैट नाउ वी आर रिट्रीटिंग बैक. हमने ये कब्जा कर लिया. दिस इज व्हाट वी वांटेड और हम रिट्रीट कर रहे हैं. दे लॉस्ट, दे वर लूजिंग दैट वॉर बट दे डिक्लेयर्ड देयर सेल्फ विक्ट्री. ऐसा ही ट्रम्प भी करेंगे. दैट इज वन चॉइस, दैट इज वन थिंग व्हिच आई एम फोर्सिंग. तो ट्रम्प क्या करेंगे? आई हैव डिक्लेयर्ड टैरिफ्स. हम लोग डर गए. पीपल आर कमिंग ऑन टेबल, पीपल आर नेगोशिएटिंग विद मी. दिस इज व्हाट आई वांटेड. This was my tactic, and now I'll bring down the order again in the same form. That will be the best news for the world and for America itself. वहां पे अगर हम उस लेवल पे हम पहुंचते हैं तो आप देखोगे कि वर्ल्ड की ग्रोथ दोबारा बैक आती है एंड विल नॉट सी दिस काइंड ऑफ अनसर्टेनिटीज. बट विल दैट हैपन? वी डोंट नो. वी वेट एंड सी. बट चांसेस ये हैं कि जो अमेरिका ने पहले वियतनाम के साथ किया था वही अगर ट्रम्प कर देते हैं तो इट विल बी गुड फॉर यूएस. ही इज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड व्हाट ही टोल्ड इन द इलेक्शन रैली. उसे बोला था कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, लगा दिया उसने. बड़े टैरिफ लगाए हैं, छोटे मोटे टैरिफ नहीं लगाए हैं. नाउ probably in 1 week or 2 week or 3 weeks, I think he should bring people on table, negotiate with them, make whatever he wanted to gain out of the countries. What India is selling today, आज जो कंटिन्यूस मीटिंग चल रही है इंडिया की, इंडिया का क्या फोकस है? इंडिया चाह रहा है कि आई वांट टू इंक्रीज, I want to import more out of you. So let me import some defense items. Let me import some vehicles from you. We want to reduce that trade imbalance. क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि अमेरिका ने प्रोडक्ट वाइज और सेक्टर वाइज टैरिफ नहीं लगाया है, उन्होंने ट्रेड इम्बैलेंस पे लगाया है. तो अब कंट्री को डायरेक्शन मिल गया, इंडिया को डायरेक्शन मिल गया अब कि मुझे बस ट्रेड को इम्बैलेंस को कम करना है, तो मेरा ट्रेड का बैरियर कम हो जाएगा. राइट? तो अगर हमारा 50-60 बिलियन डॉलर्स का लेट्स से टैरिफ ट्रेड का इम्बैलेंस है, तो अगर मैं कुछ ऑयल खरीद लेता हूँ यूएस से या लेट्स से गैस खरीद लेता हूँ, सो 20-30 मिलियन डॉलर्स बिलियन डॉलर वहां से खरीद लेता हूँ. कुछ मैं गाड़ियां खरीद लेता हूँ, कुछ मैं डिफेंस खरीद लेता हूँ. तो आपका वो जो ट्रेड का इम्बैलेंस है वो कम हो गया और आप पहुंच गए 10% के ऊपर. 10% तो उन्होंने बेस लगा ही दिया अक्रॉस ऑल. तो 10% का टैरिफ रह जाएगा, आप 20 से 10 पे आ जाएंगे. दिस इज वॉट द एम ऑफ आवर मिनिस्ट्री विल नाउ बी, टू एक्चुअली कम क्लोज टू दैट 10% काइंड ऑफ टैरिफ रेंज बाय taking or let's say importing or buying some more items from US. This is what India will aim for, क्योंकि उनका फॉर्मूला ही ऐसा है. पहले बोल रहे थे कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा प्रोडक्ट वाइज. अगर फार्मा पे लग रहा है 20-30% तो मैं फार्मा 30% लगाऊंगा. अगर ऑटो पर मेरे को 120% लगा रखा तो मैं 120% ऑटो पर लगाऊंगा. वो तो उन्होंने किया नहीं. उन्होंने तो ट्रेड का इम्बैलेंस निकाला और उसके बीच में रेशियो निकाल के आपने एक वो निकाल दिया. एंड यू आर कॉलिंग दिस इज अ काइंड टैरिफ इम्पोजिंग, काइंड टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ. क्यों? क्योंकि इंडिया का ट्रेड इम्बैलेंस 52% है, आपने लगाया 26%, तो मैंने आधा ही लगाया. एहसान कर दिया इंडिया के ऊपर या पूरे वर्ल्ड के ऊपर. सो नाउ इंडिया हैज गॉट दैट की to reduce that balance. India has still maintained a good relationship with Trump. हमने रिटेलिएट नहीं किया है. रिटेलिएट तो कोई करना भी नहीं चाह रहा, वो कर भी नहीं रहा है. जापान ने क्या बोला? जापान का स्टेटमेंट आया कि वी आर पेन्ड बाय व्हाटएवर हैपनिंग बट वी आर रेडी टू टॉक. वी आर इन नो मूड टू पुट रेसिप्रोकल टैरिफ्स. मैंने पहले भी कहा था, कोई कंट्री ये कोशिश नहीं करेगी यूएस के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ दोबारा लगाने का. हर कोई चाहेगा कि मैं उनसे एक डील कर लूं एंड क्लोज. दिस इज व्हाट ट्रम्प वांटेड एक्चुअली. So he has taken one step towards it. He wanted people to actually kneel down, to come to negotiating table, and then he will make his deal crack. He is exactly moving in that way. In that way, I think we'll wait and see what happens. But if at all he is moving in that direction, it's good for US at least. It will be a great news, and for the world order also. Because अगर US थोड़ा में जाता है और उसकी तो चाइना में जाता है, बिकॉज चाइना पे अगर आप लगा देंगे 54% टैरिफ, विच इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, तो डेफिनेटली दे विल स्लो डाउन इन चाइना ऑल्सो. और अगर मान लो वो रिटेलिएट करते हैं, कुछ टैरिफ लगाते हैं यूएस कंपनीज के ऊपर, तो यूएस कंपनीज पे इंपैक्ट आता है, वो स्लो डाउन में जाते हैं. तो यूएस जो एक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और लेट्स से 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वो स्लो डाउन में आती है. 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी चाइना की है, वो स्लो डाउन में आती है. तो हाउ विल द वर्ल्ड इकोनॉमी मूव?
whatever you do, you can't only rely on your cyclicals, you can't only rely on domestic industries. Ultimately, you need exports, you need consumption. And believe it or not, China and US are the biggest consumption countries. तो आपको वो चाहिए, और डोंट फॉरगेट यूएस का 2/3 जीडीपी जो कंजम्पशन से आता है. तो अगर वो कंज्यूमर सेंटीमेंट डाउन है, अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाउन जा रहा है, व्हिच मीन्स दैट यूएस विल टेक सम मेजर्स एंड यूएस विल टेक सम स्टेप्स टू एटलीस्ट बूस्ट दैट. वो उतना उसको गिरने नहीं देंगे बिकॉज देयर इकोनॉमी इज रन बाय दैट. आई थिंक ट्रम्प ने जो अचीव करना था वो कर लिया है. दिस इज व्हाट आई फील. एंड माय पर्सनल थिंग इज दैट ही विल नाउ ब्रिंग पीपल ऑन टेबल. और लोग अब थक हार के झक मार के उनके पैरों में गिरेंगे and they will crack the deal whatever they wanted, and probably they may make wealthy again America. I don't know. As of now, it is not looking like that because markets are react नहीं कर रहे हैं. Market is thinking that US has taken a very drastic step, and probably US has taken, US ने जैसे बोलते हैं ना, अपने पैर पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी है, and probably their feet is now cut. Let's see whether rejoins or not. But as of now, it is looking like that they have taken a very drastic step and should not have taken. But that's about the world. यूरोपियन यूनियन इज नॉट डूइंग एनीथिंग, सो वहाँ से कुछ ज़्यादा ट्रिगर अभी है नहीं. बट द यूरोपियन मार्केट वर डाउन अ लॉट, और वहाँ पे रिसेशन के फियर्स आ जाते हैं बिकॉज दे डिपेंड अ लॉट ऑन यूएस मार्केट्स एज फॉर देयर गुड्स, स्पेशली द ऑटो इंडस्ट्री. तो बड़े टैरिफ लगे हैं. चाइना भी अगेन भी अ प्रॉब्लम. सो नाउ आज इंडिया में बाइंग क्यों आई है? इंडिया में बाइंग इस वजह से आई बिकॉज एक तो मैं आपको लॉजिक दिया कि सेक्टर वाइज की एडवांटेज था और मार्केट ने कैसे एक मैच्योरली रिस्पॉन्ड किया. सेकंड ईयर को जाते कहाँ पे? आपने यूएस को बेच दिया, आपने जापान को बेच दिया. आज चाइना में आप जान सकते हो टैरिफ लग गए हैं वहाँ पे. रशिया इज एनीवेज नो वेयर टू गो. तो आपका इक्विटी मार्केट बचा ही सिर्फ इंडिया. अब इंडिया में आप ढूंढ रहे हो मैं कहाँ पैसा लगाऊं. आईटी में लगा नहीं सकते आप, एफएमसीजी में ग्रोथ नहीं मिल रही है आपको, ऑटो में टैरिफ लग गए हैं, फार्मा में क्लैरिटी नहीं है. तो बचा क्या? बैंक्स. तो आपने बैंक खरीद लिए. तो इट वॉज अ कंपल्सिव बाइंग क्योंकि बैंक्स के अपडेट भी उतने अच्छे नहीं आ रहे. बी केयरफुल. आई स्टिल से बी केयरफुल. अगर ये टैरिफ रहते हैं और ट्रेड वॉर स्टार्ट होता है, which means that world growth will come down. Overall, we'll enter into a recession. And having said this, Nifty also cannot sustain at these levels. हम सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी से हम नहीं चल सकते. We need exports. We need growth in the overall world market to sustain our growth. हमने यही गलती 2008 में करी थी जब हमने एक्सपेक्ट किया था कि सिर्फ यूएस लेड प्रॉब्लम है, इंडिया में कुछ नहीं होगा. यू सॉ व्हाट हैपेंड इन 2008 आल्सो. This is the start of a trade war. Be very careful. I would still not advocate to buy big lots, but yes, you can do slow, staggered buying from here on because आज हम sync नहीं किए. That's the only reason why I'm saying it. Why I'm telling to buy is because we are not synced today, and maybe probably that reason can be attributed to expiry also today कि markets को manage किया गया या निफ्टी को manage किया गया. I don't know, but क्योंकि एक matured response था market का sector wise, क्योंकि हम sync नहीं हुए और क्योंकि हमने नेगोशिएशंस एक एडवांस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं यूएस के साथ, मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं है. बट क्या बहुत बड़ा अपसाइड है? वो भी नजर नहीं आता. प्रॉब्लम इज कि वी डोंट सी बिग अपसाइड आल्सो फ्रॉम हियर ऑन. सो कैन वी टेस्ट 23,800 अगेन? यस, द आंसर इज यस. देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हम यहाँ से 23,800 को दोबारा टेस्ट करेंगे. ये मुझे लगता है. नीचे डाउनफॉल आपके पास सिर्फ 22,800 तक का है, ऊपर की तरफ आपके 24,000 जाने का है. सो 800 पॉइंट ऊपर है, नीचे सिर्फ 400 पॉइंट है. तो 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब यहां से बाय कर सकते हैं. स्मॉल क्वांटिटी स्टैगर्ड ऑन डिप्स स्टिल रिमेन्स अ बाय. व्हाट द टारगेट? 24,000. 24,000 मुझे लगता है कि इस महीने कहीं ना कहीं आना चाहिए, बट ओनली द बैंक्स कैन लीड इट. कोई और सेक्टर इस मार्केट को लीड नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर निफ्टी बैंक. एचडीएफसी बैंक के अपडेट्स आते हैं, वी वेटिंग फॉर दैट. कब आने वाले हैं? वी हैव टू वेट एंड सी. अगर एचडीएफसी बैंक का अपडेट अच्छा आता है, मार्केट यहाँ से रैली कर सकते हैं और निफ्टी बैंक की निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा. अगर अपडेट्स अच्छे नहीं है आपके बिगर बैंक्स के, मार्केट विल नॉट गो फर्दर. रीजन इज देयर आर नो सेक्टर्स टू हेल्प मार्केट टू गो अप. हम सब देख रहे हैं कि मार्केट सिंक नहीं करेगा, बट अपसाइड का पोटेंशियल भी तो नहीं है ना. निफ्टी आईटी 20% वेटेज है, कोई देयर इज नो चांस एट ऑल निफ्टी आईटी ऊपर जा सकता है. फार्मा क्लैरिटी नहीं है, एफएमसीजी में अब डाबर के अपडेट अच्छी नहीं है. लेट्स सी अपडेट्स. मेरे ख्याल से नेस्ले के भी आते हैं, मैरिको के आते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी आते हैं. सो विल सी फॉर दिस अपडेट्स आल्सो. अगर ये एक इंडस्ट्री और लेट्स से एक कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, तो एफएमसीजी कैन बी वन सेक्टर व्हिच कैन लीड फ्रॉम हियर. और लेट्स से निफ्टी बैंक. उसके अलावा तो कोई सेक्टर नजर ही नहीं आता किसको लीड कर सकता है. सो आई हैव गिवन यू ओवरऑल एनालिसिस ऑफ व्हाट इज द ग्लोब लुकिंग लाइक.
यूएस में प्रॉब्लम डेफिनेटली है, पर हमारे लिए पैरामीटर्स कौन से अच्छे हो गए हैं? डॉलर इंडेक्स, ऑयल, बॉन्ड यील्ड्स, वो पैरामीटर हमारे अच्छे हो चुके हैं। चाइना और यूएस अगर नीचे जाते हैं तो एक वर्ल्ड में रिसेशन के चांसेस हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, जहाँ पे हमारा रिलेटिव परफॉर्मेंस है, और जो डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी है, सीमेंट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, दो सेक्टर, जो पावर सेक्टर हो गया, जो आज परफॉर्म भी किए हैं। सो दीज आर सेक्टर्स टू वॉच आउट फॉर। निफ्टी का अगर डाउन साइड लिमिटेड है तो मुझे लगता है कि अपसाइड भी लिमिटेड है, बट फिर भी चांसेस ज्यादा हैं कि हम 23,800 को शायद ऊपर की तरफ हिट करें, लेड बाय निफ्टी बैंक। दिस इज व्हाट इज लुकिंग लाइक, एंड दिस इज व्हाट द एनालिसिस इज सेइंग अस। With this, I'll probably end my video today. Thank you so much for watching. Have a nice day. Thank you so much.